Good afternoon, dear students. First year GNM students, today I am going to take the dressing and bandage, and this topic is taken from first aid. Dressings. A dressing is the protective covering applied to a wound or injury. That means dressing is a protective cover, okay, which we are using for the wound injury purposes, to cover a wound for the what is the purpose of that? To cover the wound, prevent the infection, absorb the discharge, okay, control the bleeding by applying pressure, okay. By using the dressing, we are giving the pressure on a wound to control the bleeding from that particular part, then to avoid further injuries. Then what are the types of dressings? First one is the adhesive dressings, and second one is the non-adhesive dressings. Adhesive dressings are stick dressings, or non-adhesive dressings are not stick dressing. That means adhesive dressing चिपकने वाली पट्टी होती है, और नॉन एडेसिव ड्रेसिंग वो चिपकने वाली नहीं होती है, ओके. द नॉन एडेसिव ड्रेसिंग्स, under the non-adhesive dressings, ready-made sterilized dressing, second one is the gauze dressings, and third one is the improvised dressing will come, okay. First we will see the adhesive dressings, or we can say self-adhesive dressings. It consists of a pad of absorbent gauze, okay. It is made up of, or it is consists of pad of absorbent gauze, okay. Then the adhesive material, for example, Handyplast. Before this application, the surrounding area must be dry, okay. Before applying this adhesive dressing, first we have to dry that area, okay. Then only we can apply adhesive pad or adhesive dressing, okay. Then non-adhesive dressings. Adhesive that has little or no tendency to stick to dried secretions from the wound, ठीक है. दैट मीन्स इसमें चिपकने वाला काम नहीं होता है, ठीक है. एडेसिव चिपकने वाली पट्टी होती है, और ये चिपकने वाली पट्टी नहीं होती, ओके. सो अंडर द एडेसिव ड्रेसिंग, फर्स्ट वन इट इज द रेडीमेड स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ गॉज covered by a pad. That means ready-made sterilized dressing जो होती है, it consists of several layers, कई layers, कई परत of gauze which is covered by, जो बहुत सारी layers होंगी gauze की बनी हुई, और that is covered by pad or cotton wool and attached to a roller bandage to hold it in position. Roll bandage, that means स्ट्रिप ऑफ गॉज और कॉटन मटेरियल, ठीक है, और वो जो कि रोल करके रखा हुआ है. देन सेकेंड वन इज द गॉज ड्रेसिंग. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ गॉज टू कवर लार्ज वुंड, ओके. इट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ गॉज टू कवर द लार्ज वुंड, एंड इट इज वेरी अब्सॉर्बेंट, सॉफ्ट, ओके. Then third one is the improvised dressing. It is an emergency dressing, okay. Emergency situation में हम लोग इस dressing को follow करते हैं. The dressing can be made from any clean, soft, absorbent material such as the inside of a clean handkerchief or a piece of linen, a clean paper handkerchief, okay. That means improvised dressing we are using in the emergency dressings, okay. In this we can use the clean handkerchief, okay, clean linen or clean paper handkerchief. So these type of materials we can use during the emergency dressing, okay. Application of dressings. How we have to apply the dressing? There are some steps. First we have to wash hands thoroughly, then avoid touching inner part of the dressing. ड्रेसिंग पार्ट का जो इनर पार्ट होता है, हमें कभी भी
अपने हैंड से टच नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज दैट पार्ट इज द स्ट्राइल वन. ओके, do not talk or cough around the wound or dressing. Okay, during the dressing application, we have to remember that we don't have to talk in between. Okay, during the dressing procedure, the dressing must be covered with adequate pads of cotton wool and retained in position by a bandage or stripping. Okay, dressing must be covered with the adequate pads, okay, और cotton wool, ठीक है, and retained in position, एकदम particular positions में retain करना है, by a bandage, by the using of bandage or stripping. Okay, then if dressing adheres to the wound, do not try to remove it. Okay, अगर ड्रेसिंग वहाँ चिपक गई है तो ट्राई नहीं करिए उसको रिमूव करने के लिए. कवर इट विथ अ स्ट्राइल ड्रेसिंग आफ्टर कटिंग अवे वॉट एवर कैन बी रिमूव्ड. ठीक है, उसको स्ट्राइल ड्रेसिंग से कवर्ड कर दें. ठीक है, देन आफ्टर दैट कटिंग अवे वॉट एवर कैन बी रिमूव्ड. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू वॉश द हैंड्स, देन अवॉइड टचिंग इनर पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग, देन डू नॉट टॉक और कफ ओवर द, स्पेशली हम अगर मान लो इन बिटवीन हम लोग बात भी कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वुंड के जहाँ पर वुंड है पेशेंट को हम लोग वहीं पर ही बात ना करें, क्योंकि वहाँ पे बात करने पर स्पिट आना, ये सब आना, तो मतलब ये सारी चीज़ों का फिर उसके बाद में बैक्टीरिया ग्रोथ और ये सब मतलब कंटामिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जाना है. तो सो ये सब प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमको ये रिमेंबर रखना है, वी डोंट हैव टू टॉक और कफ ओवर द वुंड और ड्रेसिंग. ओके, देन द ड्रेसिंग मस्ट बी कवर्ड विथ कॉटन एडुकेट पैड्स और कॉटन वूल. ओके, देन इफ ड्रेसिंग अडहेयर्स, ओके, चिपक गया है टू द वुंड पे, डू नॉट ट्राई टू रिमूव इट. ओके, cover it with a sterile dressing. Okay, so these are the steps of dressing. Okay, how you have to apply the dressing. Now we will move to bandage. Covering a break in the skin helps to control bleeding and protect against infection. Cloth bandages cover dressings and hold them in place. That means bandage क्या है? It is a covering a break in the skin which is helps to control. मतलब ये क्या करता है, जो स्किन ब्रेक हो गई है उसको कवर करता है, प्लस टू कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन. ठीक है, पहले तो कवर कर रहा है जो ब्रेकिंग स्किन है उसको, उसके बाद कंट्रोल कर रहा है ब्लीडिंग को, उसके बाद इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहा है. ओके, द क्लोथ बैंडेज कवर ड्रेसिंग्स एंड होल्ड देम इन अ प्लेस. ओके, सो this is the definition of bandage. Now we will see the purpose of bandages. To apply direct pressure over the dressing to control bleeding from a wound. Okay, so by the use of bandages we are giving the direct pressure over the wound area to control the bleeding. Then to retain dressing and splints in positions. ठीक है, जो ड्रेसिंग और स्प्लिंट्स हमने यूज़ करी है वो अपनी पोजिशंस में रहें, सो वी आर यूजिंग द बैंडेज. तो उसके लिए हम लोग बैंडेज यूज़ करते हैं. टू प्रिवेंट और रिड्यूस द स्वेलिंग, तो इसके लिए भी हम लोग बैंडेज यूज़ करते हैं. देन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू अ लिम्ब और जॉइंट. फॉर द सपोर्टिंग पर्पस वी आर ऑल्सो यूजिंग द बैंडेजेस. देन टू रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट. ओके, तो मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द बैंडेज. देन टू असिस्ट इन लिफ्टिंग एंड कैरिंग द कैजुअलिटी. ओके, और हमको जब लिफ्टिंग और शिफ्टिंग करना है या कैरिंग करना है कैजुअलिटी को, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बैंडेज का सहारा लेते हैं. ओके, तो assist in lifting and carrying the casualty. So these are the purposes of the bandages. Now we will see the types of
bandages. There are two types of bandages. First one, it is the triangular bandage, and second one, it is the roller bandage. Under the types of bandages, first we will see the triangular bandage. For making sling or secure large dressings, we are using the triangular bandage, and it is a square piece of calico 100 centimeter. Okay, 100 centimeter का 40 inches होता है in length, so that two triangular bandages are formed. It has 3 borders. उनके 3 borders होते हैं. ओके, ये triangular shape का होता है, 3 borders होते हैं. The longest is called the base and the other, मतलब जो triangular shape का होता है तो ऊपर से नीचे तक का वो base, the longest is called the base. That means ये triangular shape का bandage आपका रहेगा. ये जो longer side है वो आपका base कहलाएगा, और and the other 2 are called sides. और जो उसके अगल बगल जो रहेंगे ऐसे sides में, ये वाला और ये वाला, तो that is called the sides. Okay, there are 3 corners, और उसमें triangular में 3 corners होंगे, upper and side by side. Okay, the one opposite the base is called the point and the other 2 are called ends. अब जो बेस के जस्ट ऊपर की तरफ में जो पॉइंटेड है, उसको जो कॉर्नर है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट. और जो साइड बाय साइड के में जो एंडिंग है, मतलब जो कॉर्नर्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंड्स. ओके, तो मतलब ट्रायंगुलर शेप का होता है कैलिको 100 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स 40 इंचेस लेंथ होती है. ठीक है, देन the 2 triangular bandages are formed. Okay, and there has 3 borders. Okay, the longest is called, जो longest, इसमें longest वाला जो होता है, that is called the base, and जो and the other 2 are called sides. जो उसके अगल बगल होते हैं उनको बोला जाता है sides. और जो उनके there are 3 corners, तो जो मिड में होता है ऊपर की तरफ में कॉर्नर, उसको बोला जाता है पॉइंट. और जो अगल बगल जो होते हैं कॉर्नर्स, ऐसे करके ऐसे, तो मतलब जो अगल बगल के कॉर्नर्स होते हैं उनको बोला जाता है एंड्स. सो नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ ट्रायंगुलर बैंडेजेस. एज अ होल क्लोथ स्प्रेड आउट फुली. पहले तो जो ट्रायंगुलर बैंडेजेस उसको पूरी तरीके से पहले हम लोग स्प्रेड करेंगे. एज अ ब्रॉड बैंडेज ब्रिंग द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ बेस एंड फोल्ड अगेन इन द सेम डायरेक्शन. ओके, सेम डायरेक्शन वी हैव टू फोल्ड इट. एज नैरो बैंडेज फोल्ड द ब्रॉड बैंडेज. जो नैरो बैंडेज होता है वो फोल्ड द ब्रॉड बैंडेज वंस मोर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम डायरेक्शन में ही उसको हम लोग मूव करेंगे, मतलब फोल्ड करेंगे. ठीक है, व्हेन अ स्मॉलर साइज ट्रायंगुलर बैंडेज इज रिक्वायर्ड, फोल्ड द ओरिजिनल बैंडेज बाय ब्रिंगिंग द एंड्स टुगेदर. द साइज विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल. ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, पहले हम लोगों ने स्प्रेड कर दिया. स्प्रेड करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग जो हम लोग ने फोल्ड करेंगे हम लोग ब्रॉड बैंडेज को, और उसको एक और बार फोल्ड करेंगे. उसके बाद जो एंड्स हैं वो यहाँ, उसको हम लोग टाई करते हैं. तो ये जो ट्रायंगुलर बैंडेज होता है, कैसे उसको हमको प्रोसीजर्स में करना है, तो ये आप इस वीडियो में बाद में देखेंगे. सारे प्रोसीजर्स आप कंटिन्यू देखेंगे कि कैसे कैसे हमको बैंडेज अप्लाई करना है फॉर द पर्टिकुलर एरिया. ओके, tying the bandage, reef knot. To make a reef knot, hold the ends of the bandage, one in each hand, cross the ends under in the right hand and then over the end in the left hand, thus making a turn. Cross the ends over in the right hand and then under the end in the left hand, making a second turn. तो ये अभी आपको जो रीफ नोट है, रीफ नोट कैसे उसको टाई करना है वो चीज़ के बता रहे हैं कि रीफ नोट को आपको कैसे बनाना है, कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे. तो रीफ नोट
कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे उसको बनाना है, तो वो चीज़ जो है आप प्रोसीजर्स में देखेंगे, ठीक है। वीडियो में आप जब देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद हम मूव करते हैं रोलर बैंडेज की ओर, ओके। The roller bandage are generally used in hospitals to provide first aid in case of emergency. तो जो रोलर बैंडेज बैंडेज जो होते हैं स्पेशली वी आर यूजिंग इन द हॉस्पिटल्स, ओके, टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड ड्यूरिंग द इमरजेंसी केयर। तो पर्पस क्या है? टू सिक्योर ड्रेसिंग टू कवर द वुंड्स, ठीक है, टू सिक्योर द ड्रेसिंग टू कवर द वुंड्स, देन टू एक्सेप्ट प्रेशर्स एज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हैमरेज, ठीक है। हैमरेज ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, तो रोलर बैंडेज वी आर यूजिंग। और फॉर द वेरिकोज वेन्स के लिए भी, टू प्रोवाइड सपोर्ट इन केस ऑफ स्प्रेन्स अगर हो गया है तो उसको सपोर्ट के लिए। लेसन स्वेलिंग इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स, ठीक है, स्वेलिंग को कम करने के लिए। सिक्योर स्प्लिंट्स इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटी, फ्रैक्चर टाइम में भी वी आर यूजिंग। देन प्रोवाइड वार्मथ एंड टू करेक्ट डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो सो वी आर यूजिंग द रोलर बैंडेजेस। तो रोलर बैंडेजेस आपके जो होते हैं वो कॉटन जैसे, देन अनप्लेस्ड कैलिको का, फैलन का, ठीक है, गॉस का, तो इन सब का बना सकते हैं, ठीक है। इन सब मटेरियल्स को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द रोलर बैंडेजेस, ठीक है। तो रोलर बैंडेजेस जो होते हैं उसमें हेड होता है और टेल होता है, ठीक है। रोलर बैंडेजेस मतलब जैसे गॉज रोल होता है, ठीक है, तो वो रोलर जो होता है दैट इज कॉल्ड द रोलर बैंडेज, ओके। अब रूल्स फॉर अप्लाइंग रोलर बैंडेजेस और अदरवाइज बैंडेजेस, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंडेजेस यूज़ करने के लिए क्या रूल्स हैं, क्या कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, या रोलर बैंडेजेस आप यूज़ करें तो क्या चीज़ आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट select the correct size of bandage, okay, remember that first of all you have to select the correct size of bandage, then face the casualty and stand on the same side of bandaging, okay। जिस तरफ को लगी है उसी तरफ में ही आपको पेशेंट को स्टैंड करने के लिए बोलना है ड्यूरिंग द बैंडेजिंग टाइम, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैपलेन, दैट मीन्स अगर हेड इंजरी है या हेड का आपको बैंडेज करना है, ठीक है, आई बैंडेज करना है, तो इसके लिए आपको तो सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एडर विल बी स्टैंड्स बिहाइंड द पेशेंट, ओके, इन दिस सिचुएशन। देन सपोर्ट द पार्ट विच इज बीइंग बैंडेज इन पोजिशन टू विच इट इज टू रिमेन, ओके। थर्ड ये है कि सपोर्टिंग द पार्ट, ओके, बैंडेज वी आर यूजिंग टू सपोर्ट दैट पार्ट टू रिमेन एज अ सेम पोजिशन वाइल बैंडेजिंग लेफ्ट लिम्ब, होल्ड द हेड ऑफ द बैंडेज इन राइट हैंड, दैट मीन्स इन्होंने बोला है वाइल बैंडेजिंग लेफ्ट लिम्ब होल्ड द हेड ऑफ द बैंडेज इन राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड में हमको जो बैंडेज है, जो उसका हेड है उसको पकड़ना है, ठीक है। एंड अगर जैसे मान लो अगर बैंडेजिंग हम लेफ्ट लिम्ब की कर रहे हैं तो हमको बैंडेज का जो हेड है उसको राइट हैंड में पकड़ना है, ओके। अगर लेफ्ट लिम्ब का कर रहे हैं तो हमको राइट हैंड में जो बैंडेज का हेड है उसको पकड़ना है, ओके। देन फिक्स द बैंडेज बाय टेकिंग 2 सर्कुलर टर्न्स ऑन द ड्रेसिंग, ठीक है। फिक्स द बैंडेज, ओके, बाय टेकिंग 2 सर्कुलर टर्न्स ऑन द ड्रेसिंग, ठीक है। फिक्स द बैंडेज, बैंडेज फ्रॉम बिलो एंड देन अपवर्ड्स ओवर द लिम्ब, ठीक है। तो बैंडेज करते समय बिलो देन अप, तो पहले आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ओके, बैंडेज करने का तरीका। देन अप्लाई बैंडेज फ्रॉम इनर साइड टू द आउटसाइड साइड, जब आप बैंडेज अप्लाई करोगे तो फर्स्ट इट्स गोज टू इनर साइड, देन इट्स कम्स
outer side. ठीक है, तो apply bandage from inner side to the outer side. Then cover 2/3 of previous turn with each fresh turn leaving 1/3 of the bandage uncovered. Okay, that means जब आप कवर कर रहे हो तो प्रीवियस वाला जैसे आपने 2/3 कर लिया है टर्न, अब जो ईच फ्रेश जो भी टर्न आप बार बार जो टर्न लेंगे वो आपका 1/3 उसमें अनकवर्ड बैंडेज होगा, मतलब जगह जो छोड़ते हैं हम लोग. देन कीप द टर्न्स पैरेलल विथ वन अनदर. ओके, तो मतलब जो हम टर्न्स लेते हैं वो सिमिलर वे में लेना है. ठीक है, एक दूसरे के साथ सिमिलर वे में लेना है. ठीक है, देन मेक द पैटर्न लाई ऑन द आउटर साइड ऑफ द लिम्ब एंड कीप इट ऑन द वन लाइन. ओके, देन सी दैट द बैंडेज इज नीदर टू लूज और टू टाइट. ओके, तो इसमें आपको जितने भी आपको क्लियर हैं आप वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें ये बताया है कि बैंडेज जो है ना ज़्यादा लूज होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए. फिक्स द बैंडेज ईदर बाय अ पिनिंग इट अप और बाय यूजिंग एडहेसिव प्लास्टर और बाय अ रीफ नोट. तो हम लोग बैंडेज को फिक्स या तो पिन लगा के कर सकते हैं, या तो एडहेसिव प्लास्टर लगा के कर सकते हैं, या तो रीफ नोट बना के कर सकते हैं, मतलब बांध के जो हम लोग बांधते हैं. ठीक है, रीफ नोट में जैसे कि हम लोग बांध के फिर ये जो गांठ लगाते हैं. देन नेवर अप्लाई द नोट और पिन ओवर अ बोन और वुंड और वेयर इट विल कॉज प्रेशर एंड प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम लाइंग ऑन रेस्टिंग ऑन इट. दैट मीन्स कभी भी जब भी हम पिन लगा रहे हैं या नोट लगा रहे हैं तो कभी भी उस वुंड के ऊपर ही नहीं बांधना है, वुंड के ऊपर ही नहीं लगाना है. ठीक है, क्योंकि इट विल कॉज प्रेशर. ओके, वाइल रिमूविंग द बैंडेज लूजन द एंड एंड पास द बैंडेज फ्रॉम हैंड टू हैंड ओवर द फ्रंट एंड बैक ऑफ द लिम्ब गैदरिंग द लूज बैंडेज अप इनटू द हैंड्स. इन्होंने बोला है कि जब भी हम लोग बैंडेज अप्लाई करते हैं और मतलब बैंडेज को अप्लाई करने के बाद जब रिमूव करते हैं, रिमूविंग टाइम में हमको सबसे पहले उसका एंड पार्ट को लूज करना है. ओके, देन नेवर अप्लाई अ वेट बैंडेज एज इट विल श्रिंक एंड बिकम टू टाइट ऑन ड्राइंग एक्सेप्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्वेलिंग एंड टू सपोर्ट इन स्प्रिंग. इन्होंने बोला है कि मतलब बैंडेज कभी भी हमको वेट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वेट यूज़ करने पर जब वो ड्राई हो जाएगा तो टाइट हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, ये पेपर में भी पूछा जाता है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ अप्लाइंग रोलर बैंडेज और अदरवाइज बैंडेजेस. सो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट साइज ऑफ bandage, then face the casualty and stand on the same side for bandaging, except the in case of head injury or head bandaging or eye bandaging. Okay, then support the part which is being bandaging. ठीक है, then while bandaging left limb, hold the head of the bandage in right hand. Okay, अगर लेफ्ट लिम्ब की बैंडेजिंग है तो राइट हैंड में हम लोग क्या पकड़ेंगे, बैंडेज पकड़ेंगे. फिक्स द बैंडेज बाय टेकिंग 2 सर्कुलर टर्न्स. ठीक है, 2 सर्कुलर टर्न्स हमको करके फिक्स करना है बैंडेज. बैंडेज फ्रॉम बिलो एंड देन अपवर्ड्स ओवर द लिम्ब. ओके, बिलो से अपवर्ड जाना है. अप्लाई बैंडेज फ्रॉम इनर साइड टू द आउटर साइड. Cover 2/3 of the previous turn and with each fresh turn leaving 1/3 the bandage uncovered. Keep the turns similar with one another. Make the pattern lie on the outside of the limb and keep it on one line. See that the bandage is neither too loose or not too tight. Fix the bandage either by pinning it up or by using adhesive plaster or reef note.
नेवर अप्लाई द नोट और पिन ओवर अ बोन और वुंड बिकॉज इट विल कॉज प्रेशर. ठीक है. दैट मीन्स नेवर अप्लाई द नोट और पिन ओवर, मतलब कभी भी उस वुंड एरिया में या उस बोन एरिया में कभी भी पिन या रीफ नोट नहीं लगानी है वहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर प्रेशर होने की चांसेस है, कारण हो सकता है, प्रेशर का कारण बन सकता है. ठीक है. देन while removing the bandage, loosen the end part of the bandage. Never apply a wet bandage as it will shrink and become too tight. Okay. So these are the rules of applying roller bandages or bandages. Okay. Then various turns used while applying roller bandages. These are the circular turn, spiral turn, reverse spiral turn. Okay. Then figure of 8 turn, spica, then divergent spica, then recurrent turn. Then तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप प्रोसीजर्स में देखेंगे जो कि इस वीडियो में हैं. ओके. तो वो आपको कंटिन्यू एक के बाद एक मिलती रहेंगी सारे जितने भी बैंडेजेस हैं. ओके. And these are the procedures for you in first aid. Okay. Then simple bandages is there, then reverse spiral figure of 8 turn, then thumb, eye, then head bandages, ear, then breast. So these are the bandages in this for these are the bandages I have already done as a procedures. तो मैंने ये सारे प्रोसीजर्स किए हैं और आपके लिए वीडियो में अवेलेबल किए हैं. तो इसमें से मैंने सेलेक्टेड ही लिए हैं जो कि आपके प्रोसीजर्स के लिए हैं. ओके. नाउ जैसे कि हमने अभी रोलर बैंडेजेस के लिए देखा कि इन सब के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही सेम ट्रायंगुलर बैंडेजेस के लिए भी हैं स्काल्प में यूज़ करने के लिए. फोरहेड, आई एंड चीक, फ्रंट ऑफ द चेस्ट, बैक, शोल्डर बैंडेज, एल्बो, हेड, रिस्ट, हिप, नी, फुट, एंकल, स्टम्प. सो in this bandages I have selected some important ones and you have to go through it. okay. और आप वहाँ से देखकर सीख सकते हैं. okay. Now we will see the slings. What is slings? It is a device used to support and keep still, immobilize an injured part of the body. ठीक है. तो स्लिंग क्या होता है? It is a device to support and keep still, immobilize an injured part of the body. तो ये एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. स्पेशली उस एरिया को जो इमोबलाइज हो गया है या जो इंजर्ड पार्ट है. ओके. Slings can be used for many different injuries. So slings we can use in different types of injuries. They are most often used when you have a broken, fractured or dislocated arm or shoulder. ठीक है. स्पेशली ये यूज़ किया जाता है ब्रोकन फ्रैक्चर में और डिसलोकेटेड आर्म में और शोल्डर में. यूज ऑफ स्लिंग टू सपोर्ट इंजर्ड आर्म्स. पहले तो जो इंजर्ड आर्म्स है उसको सपोर्ट के लिए वी आर यूजिंग द स्लिंग. देन सेकेंड वन इज द टू प्रिवेंट पुल बाय अपर लिम्ब ऑफ इंजरीज टू चेस्ट, शोल्डर एंड द नेक. तो जो पुल लग रहा है, ठीक है, तो वो पुश ये सब को प्रिवेंट करने के लिए वी आर यूजिंग द स्लिंग्स. स्पेशली जहाँ अगर इंजरी अपर लिम्स में है
या चेस्ट में है या शोल्डर या फिर नेक में हो. देन टाइप्स ऑफ द स्लिंग्स. आर्म स्लिंग. The arm sling is used in case of fractured ribs, injuries of upper limbs, and in cases of fracture in the forearm, wrist, and hands after the application of splints or plaster cast and bandaging. That means arm sling जो होता है we are using in the fracture cases like fracture in the ribs, injuries of upper limbs, and in case of fracture in the forearm, wrist, hands, okay, or after the application of splints और plaster casts bandaging. तो इन सब में आर्म स्लिंग में हम लोग फ्रैक्चर्स केसेस में यूज़ करते हैं, जिसमें कि रिब्स आएंगे, इंजरीज टू द अपर लिम्स आएंगे, देन स्प्लिंट्स अगर लगाया गया है तो उसके बाद यूज़ करने के लिए हम लोग आर्म स्लिंग्स यूज़ कर सकते हैं. देन अगर फोर आर्म में फ्रैक्चर है, रिस्ट में, हैंड्स में, सो वी कैन यूज़ द आर्म स्लिंग्स. देन अप्लाइंग द स्लिंग. आप स्लिंग्स को कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग वो जानेंगे. फेस द कैजुअलिटी. तो face the casualty, then put one hand of the spread triangular bandage over uninjured shoulder with the point on the injured side. So after that we have to put one end of the spread triangular bandage, ठीक है, spread triangular bandage and uninjured shoulder with a point on the injured side. ओके ये सब आपको जो है प्रोसीजर में जब आप डेमो देखेंगे तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम अभी क्या रीड कर रहे हैं. ओके, पास द एंड अराउंड द नेक एंड ब्रिंग इट ओवर द इंजर्ड शोल्डर. द अदर एंड विल बी हैंगिंग डाउन ओवर द चेस्ट. प्लेस द forearm horizontally across the chest and bring the hanging end up. The forearm is now covered by the bandages. Tie the two ends, positioning the forearm horizontally or slightly tilt upward. Apply a reef knot in the pit above the collarbone. That means जो ट्रायंगुलर शेप्ड का बैंडेज होता है, ट्रायंगुलर, उसको हम लोग जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर लेफ्ट में लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगुलर बैंडेज उसको यहाँ पूरा डाल के हम लोग उसको नीचे से टर्न करके इधर उसके जैसे मान लो इधर से हमने स्टार्ट किया है, मेरा ये इंजर्ड है तो यहाँ से उसका फर्स्ट गया, फिर उसके बाद जो लास्ट एंडिंग जो पार्ट होगा उसका वो हम लोग उसके जस्ट अपोजिट डालेंगे. ओके, ऐसे टर्न करके जस्ट अपोजिट डालेंगे और रीफ नोट हमारा कॉलर पे बनेगा. ओके, कॉलर बोन पे. ये जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, डेमो देखेंगे इसका तो आपको क्लियर हो जाएगा. Tuck the part of the sling which is loose at the elbow behind the elbow and bring the fold to the front and pin it up to the front of the bandage. उसके बाद जो ये बचा वाला पार्ट, जब आपने ये वाला चीज़ सब कर दिया, उसके बाद ट्रायंगुलर बैंडेज में ये वाला पार्ट बचा हुआ रहता है तो आप इसको यहाँ पे फ्रंट में फोल्ड करेंगे और पिन करेंगे. ठीक है, तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कैसे किया जाता है. ठीक है, then place the free base of the bandage in such a way that its margin is just as the base of the nail of the little finger. The nails of all the fingers should be exposed. ठीक है, नेल्स जितने भी हैं वो एक्सपोज होने चाहिए. ये वाला जब ट्रायंगल बैंडेज बना रहे हैं तो ये नेल्स, ये नहीं कि आपने पूरे कर, नहीं, नेल्स दिखने चाहिए. इंस्पेक्ट द नेल्स फॉर एनी bluish discoloration. A bluish color indicates that there is dangerous tightening of slings or plasters obstructing the free flow of blood circulation. ये हम लोग नेल्स को इसलिए फ्री करके छोड़ रहे हैं जब हम लोग ये ट्रायंगुलर बैंड, ये स्लिंग जब यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं जैसे कि हमें ये पता चल जाए कि अगर ये ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है नेल्स तो कहीं ना कहीं टाइटिंग, मतलब टाइट हो गया ये स्लिंग, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो रहा है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है. प्लेस अ सॉफ्ट पैड अंडर द नेक पोर्शन ऑफ द स्लिंग टू प्रिवेंट रबिंग ऑफ द स्किन इन दैट प्लेस.
दैट मीन्स अब हमने यहाँ पे रीफ नोट जो बनाया है कॉलर बोन पे, अब वहाँ पे एकदम फ्रिक्शन ना हो या वहाँ पे कुछ रबिंग सेंसेशन ना हो, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट पैड, हम लोग वहाँ लगा सकते हैं। और उसके बाद मतलब जो रीफ नोट हमने लगाया है वहाँ पर हम लोग बीच में सॉफ्ट पैड रख सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्लिंग और अप्लाइंग द स्लिंग। तो ये आपको क्लियर है, जब आप इसका डेमो देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि ट्रायंगुलर बैंडेज जो होता है वो स्लिंग में कैसे यूज़ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देन सेकेंड वन इज द कॉलर एंड कफ स्लिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमने देखा था आर्म स्लिंग, सेकेंड टाइप हम देखेंगे कॉलर एंड कफ स्लिंग। This sling is used to support the wrist only. The elbow is bent and the forearm is placed across the chest in such a way that the fingers touch the opposite shoulder. In this position, the sling is applied. A club hitch is passed around the wrist and the ends tied in the hollow above the collarbone on the injured side. That means जो ये कॉलर और कफ स्लिंग जो होता है वो स्पेशली यूज़ किया जाता है सपोर्ट के लिए, रिस्ट के लिए। ठीक है, मतलब ये रिस्ट जो होता है उसी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग कफ स्लिंग या कॉलर हम लोग स्लिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग, मैं डेमो करके मैंने बताया है, आप क्लब हिच देखेंगे कि जब मैं उसको 8 जैसे बनाऊंगी तो वो उसको बोला जाता है क्लब हिच। और जब मैं उसको ले जाके यहाँ पे जब नोट बनाऊंगी, यहाँ पे जब जो गांठ बनाऊंगी, ठीक है, तो वो कॉलर बोन पे ही बनेगा। ठीक है, तो ऑन द रिस्ट एंड द टाइड इन द हॉलो अबव द कॉलर बोन। तो हमने ये क्लब हिच बनाया, ठीक है, जो हम लोग प्लेन सरफेस पे एकदम रखते हैं, फिर क्लब हिच बनाते हैं, फिर क्लब हिच में हमारा रिस्ट जाएगा और उसके बाद ये जो बैंडेज है, वो स्लिंग जो है, जो स्लिंग गई है, वो दोनों स्लिंग जाके हमारी कॉलर बोन पे हम लोग क्या करते हैं, उसको नोट बनाते हैं। ओके, तो कॉलर एंड कफ स्लिंग भी मैंने आपको डेमो दिखाया है, आप इसमें वीडियो में देखेंगे। देन थर्ड वन इट इज द ट्रायंगुलर स्लिंग। ओके, टू ट्रीट फ्रैक्चर ऑफ द कॉलर बोन द हैंड शोल्डर विल बी रेस्ड हाई टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। जो ट्रायंगुलर स्लिंग जो होता है टू ट्रीट फ्रैक्चर ऑफ द कॉलर बोन, ये जो फ्रैक्चर हो गई है कॉलर बोन उसके लिए, ट्रीट के लिए, द हैंड शोल्डर बाय रेस्ड हाई टू गिव रिलीफ फ्रॉम द, जैसे कि कॉलर बोन अगर आपकी फ्रैक्चर हो गई हो या शोल्डर आपका, ठीक है, हैंड शोल्डर आपका जो है शोल्डर हैंड ये सब आपका फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके पेन को रिलीव करने के लिए वी आर यूजिंग द ट्रायंगुलर स्लिंग। ठीक है, तो वो भी आपको बताया जाएगा कैसे डेमो किया जाता है। तो डेमो में आप सारा चीज़ ईजिली देखकर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन लर्न ईजिली। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा स्लिंग्स के अंदर हमने पहले ये देखा व्हाट इज स्लिंग। After that we have seen types of sling. Under the types of sling we have studied arm sling, then collar and cuff sling and triangular sling. ठीक है, applying the sling also we have studied. Now we will see the first aid for fracture. ठीक है, फर्स्ट एड क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्चर्स के लिए। ठीक है, आप फ्रैक्चर्स अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो फ्रैक्चर्स, कोई भी फ्रैक्चर आता है और आपको नहीं आ रहा है लिखना है, तो आप फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर जो मैंने लिखवाया अभी कॉमन, वो आप लिख सकते हो। स्टॉप ब्लीडिंग स्पेशली इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर वेयर द स्किन इज ब्रोकन बाय रैपिंग द वुंड विद अ स्ट्राइल बैंडेज और अ क्लीन क्लॉथ। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू स्टॉप द फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर के लिए हम लोग को पहले तो स्टॉप द ब्लीडिंग स्पेशली इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर। अगर ओपन फ्रैक्चर है तो हमको स्टॉप करना है ब्लीडिंग। वेयर द स्किन इज टोन, टोन मतलब होंगे जहाँ से वो कट गई है, फट गई हो स्किन,
बाय रैपिंग द वुंड विद अ स्टाइल बैंडेज और अ क्लीन क्लॉथ। कैसे? उस वुंड को हम लोग रैप करेंगे कोई स्टाइल बैंडेज से या क्लीन क्लॉथ से। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट हम लोग की प्रायोरिटी क्या होगा? वी हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ ओपन वुंड। ओके, और वेयर द स्किन इज स्टोन। ठीक है, बाय द यूज ऑफ स्टाइल बैंडेज और क्लीन क्लॉथ। देन सेकेंड, अवॉइड मूविंग द अफेक्टेड एरिया। Any movement can result in serious complications, especially in the case of neck and back fractures. ठीक है, सेकेंड हमको क्या करना है? जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको मूव होने में अवॉइड कराना है। ठीक है, मूविंग हमको अवॉइड करना है, क्योंकि मूव करने से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्पेशली अगर फ्रैक्चर नेक में या बैक में हो। देन थर्ड, cool the affected area by applying an ice pack or ice cubes wrapped in a clean cloth। उसके बाद जो affected area है उसको हमको cool रखना है। उसको cool रखने के लिए apply the ice cubes, okay, and wrapped in a clean cloth। और उसको clean cloth में we have to wrapped in a clean cloth, और clean cloth में wrap करना है। ठीक है, then फोर्थ वन इट इज द ट्रीट द पेशेंट्स शॉक। उसके बाद पेशेंट्स को शॉक से बचाना है। ठीक है, अगर पेशेंट को शॉक है तो हमें उसके बाद शॉक का ट्रीटमेंट करना है। हेल्प देम गेट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, एनकरेज देम टू रेस्ट एंड रीअश्योर देम, कवर देम विद अ ब्लैंकेट और क्लोथिंग टू कीप देम वार्म। अगर पेशेंट शॉक में जा चुका है ड्यू टू द फ्रैक्चर, तो उस टाइम पे हमको पेशेंट को वार्म प्रोवाइड करना है। और ये वार्म हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग द ब्लैंकेट्स। ओके, और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। ठीक है, और पेशेंट को रेस्ट करने के लिए एनकरेज करना है। देन फिफ्थ वन इट इज़ द कॉल द एम्बुलेंस एंड हेल्प द पेशेंट गेट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद सून आफ्टर दैट हमको एम्बुलेंस को कॉल करना है। ठीक है, और पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेज देना है फर्दर एग्जामिनेशंस एंड ट्रीटमेंट के लिए। ओके, सो दीज आर द फर्स्ट स्टेज फॉर फ्रैक्चर्स। ठीक है, पहले स्टॉप द ब्लीडिंग, अवॉइड द मूविंग स्पेशली द पर्टिकुलर पार्ट, कूल द अफेक्टेड एरिया, देन ट्रीट द पेशेंट्स शॉक, देन कॉल द एम्बुलेंस। देन रूल्स फॉर अप्लाइंग स्प्लिंट्स। तो रूल्स फॉर अप्लाइंग वो स्प्लिंट जो है वो ऑलरेडी आई हैव टॉट यू इन द in injury to the bones and joints chapter. Okay, so आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। Now we will see the Thomas splint. Thomas splint divides by use on the modern Thomas splint is one of the most common pieces of medical equipment used in hospitals. तो जो Thomas splint है it is devised by the use on, और ये मॉडर्न थॉमस स्प्लिंट जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन पीसेस विच वी आर यूजिंग इन द हॉस्पिटल्स एज अ मेडिकल इक्विपमेंट। इट इज़ अ सिंपल टूल यूज टू इफेक्टिवली इमोबिलाइज लिम्स एंड हैज सक्सेसफुली रिड्यूस्ड द मोबिडिटी एंड मोर्टेलिटी दैट वॉज वंस इन्वॉल्व द लिम फ्रैक्चर। ठीक है, विथ लिम फ्रैक्चर। तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये लिम फ्रैक्चर्स अगर जितना हो जाता है तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। वन एंड ऑफ द ट्रैक्शन स्प्लिंट इज पोजिशन अगेंस्ट द हिप एंड पुशेस अपवर्ड्स अगेंस्ट द पैल्विक बोन। ठीक है, तो जो वन एंड होता है जो ट्रैक्शन स्प्लिंट का, वो पोजिशंस अगेंस्ट द हिप, ठीक है, अगेंस्ट द हिप जाएगा, एंड पुश अपवर्ड्स, पुश द अपवर्ड्स अगेंस्ट द पैल्विक बोन। ठीक है, तो pelvic bone, a strap around the foot and ankle is connected to the other end of the splint। ठीक है, ये दूसरे साइड में कनेक्टेड रहेंगे स्प्लिंट के, फूट और एंकल। देन एंड टाइटन टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द मसल टेंशन एंड प्रोड्यूस ट्रैक्शन, initially used for immobilization for tuberculosis
ऑफ द नी, ठीक है। तो स्पेशली ये ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द नी इमोबिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो स्पेशली एक थॉमस स्प्लिंट जो होता है वो आपको मैं बताऊंगी, डेमो बताऊंगी उसका कि डेमो मतलब थॉमस स्प्लिंट को कैसे यूज़ करना है, ओके। और थॉमस स्प्लिंट है क्या, ठीक है।
adhesive.
So here we have studied bandages. ठीक है, under the bandages we have seen means this is the chapter name is the dressing and the bandage. We have studied what is dressing, purpose of dressing, types of dressings, then adhesive dressing we have studied, this is a type of dressing. Then second one is the non-adhesive dressings. Under the non-adhesive dressings subheadings are ready-made sterile dressings we have studied, gauze dressing we have studied, improvised dressing we have studied. After that we have studied application of dressings. Then we have studied bandages definition, bandage definition, then purpose, types of bandage, under that triangular bandage and roller bandage. Triangular bandage, the uses of triangular bandage we have studied. Then tying the bandages we have under that we have studied reef knot. Okay, then granny knot also is there. Okay, then under the triangular bandage we have studied where we can use the triangular bandages. uses हमने देखे उसके स्काल्प के लिए, फोरहेड, आई एंड चीक के लिए, फ्रंट ऑफ द चेस्ट के लिए, बैक के लिए, देन शोल्डर बैंडेज एल्बो के लिए, देन हैंड, रिस्ट, हिप, नी, फूट, एंकल, स्टम्प, इन सब के लिए हम लोग ट्रायंगुलर बैंडेजेस कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ हमने देखी. ठीक है, किस किस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट सेकेंड इज द सेकेंड क्या था हमारा रोलर बैंडेज. तो रोलर बैंडेज में हमने उसकी डेफिनेशन, पर्पस, देन मटेरियल देखा. ठीक है, और रोलर बैंडेज में जो ऊपर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड, और जो लास्ट वाला होता है दैट इज टेल. ठीक है, तो हेड और टेल हमने ये भी देखा. ठीक है, कौन से पार्ट को बोलते हैं. देन मोस्ट थिंग वी हैव स्टडीड, very important part we have studied, that is rules of applying roller bandages और bandages और roller bandages को कुछ rules हैं कि उनको कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ हमने देखा. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वेरियस टर्न्स कैसे यूज़ करें वाइल अप्लाइंग द रोलर बैंडेजेस. तो जैसे सर्कुलर टर्न, स्पाइरल टर्न क्या होता है, रिवर्स स्पाइरल टर्न, फिगर ऑफ 8 टर्न, स्पाइका, देन डाइवर्जेंट स्पाइका, रिकरेंट टर्न, सिंपल स्पाइरल, रिवर्स स्पाइरल, फिगर ऑफ 8 टर्न, देन स्पाइका, थंब, देन हेड बैंडेज, आई, ईयर एंड प्रेस. तो इनमें से सेलेक्टेड मैंने डेमोस्ट्रेट किया है जिसको आप इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो आप एक के बाद एक सारे लाइन वाइज आप बैंडेजेस देखते रहेंगे, तो आप जब देखेंगे तो आप सीख जाएंगे. ठीक है, तो देखकर और पढ़कर आप सीखें. देन उसके बाद वी हैव स्टडीड स्लिंग्स. अंडर द स्लिंग्स वी हैव स्टडीड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्लिंग, what are the uses of slings, then types of sling. Under the types of sling there are 3 types of slings: arm slings, collar and cuff sling and triangular sling. ठीक है, then after that we have studied applying the sling. ठीक है, this is very important, applying the sling. applying आपको सारे के पढ़ने हैं, चाहे वो बैंडेज हो, चाहे वो स्लिंग हो, देन चाहे वो फर्स्ट एड ऑफ फ्रैक्चर हो. ठीक है, देन उसमें हम लोगों ने ये स्लिंग्स देख लिए सारे. फिर स्लिंग्स के बाद हम फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स हमने देखा. देन आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड रूल्स फॉर अप्लाइंग थॉमस स्प्लिंट. ऑलरेडी दिस आई हैव टेकन इन द चैप्टर ऑफ इंजुरी टू द बोन्स एंड joints. Okay, then we have studied what is Thomas splint. Okay, so I hope you all understood this chapter, dressing and bandage. Here your first aid is finished. Okay, आपका फर्स्ट एड सब्जेक्ट ऑलरेडी सारे यूनिट्स फिनिश हो चुके हैं. ठीक है, तो स्टडी करिए और जो डेमोन्स्ट्रेशन जो डेमो करके दिखाए गए हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए गए हैं वो चीज़ को, बैंडेजेस को सीखिए. ठीक है.
So thank you so much. Study well.